کا جنو جو رگوں سے بہا ہے، دل آزمایا تو ڈرنا لگا ہے، دل کا جنو جو رگوں سے بہا ہے، دل آزمایا تو ڈرنا لگا ہے، نہیں خوف کوئی بھی دشمن کا ہم کو، نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو، نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ ہم آنے والے تمام معزز مہمانوں کو جگنا تشریف لانے پر، آمد پر
دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی تقریب کے مہمان جناب پہلوان اصغر علی رحمانی صاحب، جناب محترم محمد عدنان صاحب کسٹم انسپیکٹر سمریاوال سیالکوٹ، اور جناب حکیم عبدالجبار راشد صاحب تشریف لائے۔ معزز مہمانوں میں فوزیہ مقصود بٹ صاحبہ تشریف لائیں، وارث مقصود بٹ صاحب تشریف لائے، عرفان علی سیٹھی صاحب تشریف لائے، سیٹھ ندیم کرامہ صاحب تشریف لائے، سیٹھ جمشید رضا تشریف لائے دل کی اتھا گہرائیوں سے، اور چاچا جی منور گرایا صاحب تشریف لائے دل کی اتھا گہرائیوں سے۔ میں اپنی پوری تنظیم سے، پوری ایگزیکٹو باڈی رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ یونٹ جگنا کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب باقاعدہ تلاوت کلام پاک ہو چکی ہے، تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ اب تمام ساتھی درود پاک دا نذرانہ حضور پر نور حبیب رب غفور کی عالم ایوب کی بارگاہ میں اپنے اپنے مبارک زبان سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یونٹ جگنا کی پوری طرف سے ہمارے نائب صدر جناب سیٹھ مزمل حسین ساقی صاحب، چیئرمین ایم سی ماڈل اسکول جگنا گجرانوالہ، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے کہ آج کی تقریب کا مقصد صرف 75 سالہ جشن آزادی منانا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ وہ سیٹھ مزمل صاحب بلا تاخیر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کی بزم جو کہ جشن آزادی کے نام سے منسوب ہے، اور اس کو رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ یونٹ جگنا کی پوری باڈی بڑی پیار بڑی محبت سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایم سی ماڈل اسکول کے اس پنڈال میں تشریف فرما ہے، اور اس پروگرام کو عزت بخشنے کے لیے بڑے پیار اور بڑے محبت سے ہمارے پاس تشریف لائے۔ میری مراد سیٹھ محمد عدنان کسٹم انسپیکٹر سمریال ڈرائی پورٹ، اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہمارے دلوں کی دھڑکن پہلوان محمد اصغر صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف لائے جو کہ اس علاقے میں کئی بار فری میڈیکل کیمپ کی صورت میں اہل علاقہ کو اپنی خدمات سے مستفید کر چکے ہیں۔ میری مراد حکیم عبدالجبار صاحب، اور ان کے ساتھ میری پوری باڈی جو کہ ان مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے آج اس پنڈال میں تشریف فرما ہے۔ آج کی بزم 14 اگست کے حوالے سے ہے، اور بڑی خوشائن بات کہ آج 75 سال ہوئے اس ملک کو آزاد ہوئے، اور اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم آج بھی غلام ہیں۔ 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو آزاد تسلیم کرتے ہیں، مگر ذہنی طور پر آج بھی ہم غلام ہیں، اور اس غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ہمارے قائد طارق محمود صاحب نے ہمیں ایک ترغیب دلائی کہ آؤ 14 اگست کے دن عوام کو اکٹھا کر کے ایک کیک کاٹے اور اس بات کا اعلان کرے کہ ہم سب آزاد ہیں۔ وہ کب آزاد ہوں گے؟ جب ہم اپنے دماغ سے اغیار کی سوچ ختم کریں گے، جب اپنے دماغ سے ہم دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کریں گے، جب اپنی سوچ کے اندر اپنے مسائل کی قدر کرنا سیکھیں گے، تب ہم آزاد ہوں گے۔ ہم آزاد اس لیے نہیں، ہماری سوچ ابھی بھی قید ہے، ابھی بھی ہم غلام ہے۔ بے شک انگریز کے غلام نہیں، ہم اپنے ضمیر کے غلام ہیں۔ ہمارے سامنے کسی کی بیٹی بک رہی ہو، کسی کی عزت پامال ہو رہی ہو، کسی کا بچہ دوائی سے بلک رہا ہو، کسی کے گھر کی چھت گر کے مر جائے، ہم ویڈیو تو بنا رہے ہوتے ہیں، آگے پکڑ کر اس کا ہسارا نہیں بنتے۔ یہی سبق، یہی لیسن، یہی درس میرے قائد طارق محمود نے ہمیں دیا، اور یہی پیغام ہمارا رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ یونٹ جگنا کا ہے۔ اور آج کا یہ بزم اس بات کا اعلان کرتا ہے
कि ये मुल्क पाकिस्तान हमें प्लेट में रख कर नहीं मिला, किसी ने हमें गिफ्ट में नहीं दिया, इसके पीछे हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं। उनकी कुर्बानियों के समर आज हमें ये खित्ता मिला, जिसके लिए हम आज भी नारा यही लगाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर हम अपने इस ला इलाहा इल्लल्लाह को तब पूरा करेंगे जब हम अपने दिमाग में, अपने जहन में और अपने शौर में दूसरों के लिए अच्छाइयाँ और भलाइयाँ पर तलाश करेंगे। और आज हम इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि 14 अगस्त के दिन अपनी आज़ादी को याद करने के लिए, अपने बड़ों की कुर्बानियों को याद करने के लिए जगह जगह पर जलसे जुलूस इनकाद किया जाता है। बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगों पर परचम वज़ा किए जाते हैं, जगह जगह केक काट कर इस आज़ादी को बरमेला ऐलान किया जाता है कि सोई हुई कौम को बताया जाता है, अरे कौम जागो, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे पैगाम को, हमारे कायद के पैगाम को जो वेलफेयर की सूरत में है, वो असल में आज़ादी वही है कि जब दूसरे बंदे को हम सहारा बनकर उसको ऊपर उठा कर लेके आएंगे, आज़ादी तब हो। अल्लाह से दुआ है कि हमारी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट जगना और हमारी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान ता क़यामत जिंदा और कायम और ताबिंदा रहे। और इसी तरह हम मिलजुल कर छोटे छोटे प्रोग्राम करके इस बात का पैगाम देते रहे कि हम सब एक हैं, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। वमालिना इल्लल्लाह। मेरी और आपकी मुराद रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के चमकते सितारे जनाब पहलवान असगर अली रहमानी साहब से गुजारिश करूँगा कि चंद मोती अपनी ज़बान से खिलाएं, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। उसी के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह केक कटाई की रस्म शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मुजम्मल साहब और मियाँ अजमल साहब ने सारी गल्लां कर दित्तियां ने आज़ादी के हवाले नाल, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले नाल। मैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के मरकजी कायदीन की तरफों तुहानूं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना कि अज का दिन तुसी सारे मिल के ते जश्न आज़ादी का दिन मना रहे हो। मेरे वालों तुहानूं बहुत बहुत मुबारक और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट मरकज़ की तरफों भी बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि गल्लां सारियां हो गई ने, ज़्यादा वक्त जिहड़ा क्योंकि अज बेशुमार प्रोग्राम ने उत्थे भी जाना है। मिल के नाल पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 14 अगस्त का दिन है और 14 अगस्त के दिन हम लोग जगना बाज़ार में रहमानी ट्रस्ट वेलफेयर जगना यूनिट की तरफ आए हैं, जहाँ पे अभी हमने केक की कटिंग की और सेलिब्रेशन की। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जगना बाज़ार के रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के सदर जगना यूनिट के हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब। तो हम आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि ये किस किस नहज पर काम कर रहे हैं और आज 14 अगस्त इन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट की और कौन कौन सी मसरूफियात आज के दिन इनकी रही और आज और कल में क्या फ़र्क है 14 अगस्त मनाने में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका पूरा नाम? हाजी मोहम्मद यूसुफ। यहीं पर पैदा हुए कि किसी और जगह से माइग्रेट करके आए? नहीं, इधर ही से पैदा हुए। तो ये जो वेलफेयर ट्रस्ट आप लोग चला रहे हैं, ये उमंग आपके अंदर कैसे पैदा हुई? ये उमंग हमारे अंदर जो है ना, सदर रहमानी वेलफेयर सदर पाकिस्तान तारिक महमूद तारिक साहब ने सानू एक स्टेज के उत्ते इकट्ठा किया, एक प्लेटफार्म के उत्ते। असी उस प्लेटफार्म के उत्ते जो आए हाँ, देखा कि लोग जिहड़े ना काम कर रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई वास्ते काम कर रहे हैं। सानू इस चीज़ तो शौक पैदा होया। पहले भी असी कर रहे सा, लेकिन असी हुण एक वेलफेयर के हवाले नाल कर रहे हैं, एक यूनिट के हवाले नाल कर रहे हैं। जिस तरह सानू हदायत दी जाती है, जिस तरह सानू मेरा मरकज़ वालों सानू दस्सिया जाता है, वो मुताबिक असी इंशाल्लाह कर रहे हैं और सानू बहुत मज़ा आ रहा है। नेकी के काम वास्ते ही बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जगने यूनिट के असी तकरीबन हुण तक 60 लाख तो ऊपर जो खर्च कर चुके हैं इन गरीबों लोगों के ऊपर, जिहदे मेरा मतलब कि क्रैकरी का समान है। उस तो बाद मेरा रमज़ान पैकेज असी देने, फिर उस तो बाद मेरा मतलब कि
ਅਸੀਂ ਨਗਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਗਰੀਬ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 500 ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾफ़ी काम ਅਸੀਂ कर रहे हैं। सदर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम गरीब बच्चियों की शादियों में भी खर्च करते हैं, मुख्तलिफ आपने पहलुओं पे बात की है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये जो ट्रस्ट काम कर रही है सिर्फ रहमानी बरादरी के लिए काम कर रही है कि इसके अलावा भी किसी भी बरादरी का बंदा आपके पास आ जाता है तो क्या आप भी उसकी भी मदद इसी तरीके से करते हैं या सिर्फ आप रहमानी बरादरी ही की मदद करते हैं? नहीं, हम तमाम बरादरियों के से तामल करते हैं। रहमानी बरादरी के चंद लोग आते हैं, ज़्यादातर तो दूसरी बरादरी के लोग आते हैं। दूसरी बरादरी को ज़्यादा हम दे रहे हैं। हमारे लिए तो एक ही चीज़ है, चाहे रहमानी बरादरी की बच्ची हो चाहे किसी और बरादरी की बच्ची हो, हम तो गरीब लोगों में तकसीम करें। हम ये कोई तमीज़ नहीं करेगा ये ज़रूरी रहमानी बरादरी की हो, नहीं, ये हरगिज़ बात नहीं है। असी टोटल जितने भी लोग हैं चाहे किसी बरादरी के भी हैं, असी उन्होंने तामल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये सिर्फ बरादरी बेस पे काम नहीं कर रहे, ये इंसानियत पे काम कर रहे हैं और इनका वही मामूल है कि जो शख्स भी मदद के लिए आ जाता है बस वो इंसानी शक्ल में होना चाहिए, वो किसी बरादरी से हो किसी मसलक से हो, लेकिन ये लोग उसकी मदद करने से दरेग नहीं करते। मैं लास्ट में हाजी साहब से एक सवाल करना चाहूँगी कि हाजी साहब, आज 14 अगस्त का दिन है और आज आपने कैसे ये 14 अगस्त का दिन मनाया और आप आने वाली नस्ल को और हमारी नई पौध को क्या पैगाम आज के दिन देना चाहेंगे? 14 अगस्त ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। साडा मैसेज पूरी दुनिया ते जाए, लोगों को जाए, दूसरे मुल्कों ते भी जाए कि भाई ये अपनी आज़ादी मना रहे हैं, अच्छे तरीके नाल मना रहे हैं। असी बस इस तो अलावा मैं यही बात करना चाहूँगा। जी नाज़रीन, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक अच्छी सेलिब्रेशन की 14 अगस्त के हवाले से और अपने आने वाली पौध और न्यू जनरेशन को आपने एक अच्छा मैसेज दिया। आप लोग एक वेलफेयर चला रहे हैं और उसमें इंसानियत की मदद कर रहे हैं। हम आपका स्टूडियो में आने का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, अगले इंटरव्यू के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से आज की सेलिब्रेशन हर जगह पर हो रही है, केक काटे जा रहे हैं, 14 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज हमारे स्टूडियो में हमारे एक मेहमान मौजूद हैं जो कि कस्टमर ऑफिसर हैं, संबड़ियाल से तशरीफ़ लाए हैं। इनका नाम है मोहम्मद अदनान। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ये जो वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रही है इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे और 14 अगस्त के बारे में ये क्या अपने अवाम को मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस पुरमसरत मौके पर इनवाइट किया और जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में हमें बुलाया और आज़ादी की तकरीब मनाने के लिए हमें इधर दावत दी। और इसके साथ साथ तमाम सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक हो। बात यह है कि ये जो ट्रस्ट काम कर रहा है ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये एक तरह की दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इस गरीबों और नादार लोगों की ये मदद कर रहे हैं और जो भी काम फलाही काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये इनकी जो भी खिदमात हैं इस इलाके में, इस मोहल्ले में, इस एरिए में, वो बहुत ही अच्छी हैं और काबिल सताइश है इनकी खिदमात। जी अदनान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ मेरे साथ और भी साथी मौजूद हैं। कुछ सेकंड्स के मैं इंटरव्यू उनसे भी लेना चाहूँगी, उनकी भी राय लेना चाहूँगी इस वेलफेयर के हवाले से और 14 अगस्त के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इलियास भट्टी साहब मौजूद हैं। तो मैं इनके साथ सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूँगी कि आप रहमानी वेलफेयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आज 14 अगस्त के हवाले से अपनी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं जी
रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਭੱਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ। ਮੈਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਤਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और वेलफेयर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी वेलफेयर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा मिशन ये है कि गरीबों की मदद करना, गरीब आवाम उनकी मदद करना और बेसहारों को सहारा देना और रफ़ाए आमा के काम करना। हमारी कोशिश यही है, हमारी वेलफेयर यही सारी वेलफेयर का पैगाम है कि दुखी इंसानों की खिदमत करना। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नायब सदर सेठ असगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे भी मैं यही सवाल करूंगी कि इनको कैसे शौक़ आया ये वेलफेयर के काम करने का। और दूसरा सवाल मेरा इनसे ये है कि ये जो 14 अगस्त मनाई जा रही है वो इसी जोश व खरोश के साथ हमें मनानी चाहिए कि या हम किसी और तरीके से इस जश्न आज़ादी को मनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असगर रहमानी है, सीनियर नायब सदर यूनिट जगना गाँव दिगार। मैं 14 अगस्त के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि क़ायद-ए-आज़म हमज़ा अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया, अल्लाह ताला उनको दीवार रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। और जितने भी हमारे साथी हैं जो गुज़र गए हैं ये पाकिस्तान बनाने में जिनका अहम किरदार रहा है, तो मैं सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को। दूसरी बात यह है कि हम रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट जगना 2016 में इसका क़याम किया, तो उसके बाद आज तक माशाल्लाह 6-7 साल हो गए हम लोगों की खिदमत करते हैं मुख्तलिफ हवालों से। हमारा पंखों का काम है, तो हम जितनी सख्त रखते हैं जो मुस्तहिक को, कोई भी किसी बहन को, किसी बेटी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वाशिंग मशीन की ज़रूरत हो, पंखे की ज़रूरत हो, हम फ्री देते हैं, कोई पैसा नहीं देते, बिल्कुल फ्री। कोई इस तरह के और भी काम बेशुमार हैं जो हमारे साथी और जो हमारे साथी हैं यूनिट जगना के, वो हर तरह की खिदमत में मसरूफ़ होता है। चाहे किसी तरह का भी कोई प्रोग्राम हो, सारे साथी इकट्ठे होते हैं और जो अल्लाह का अमल हम तैयार करते हैं उन पे हम सब मिलके कोशिश करते हैं कि इनको अटेंड किया जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट जो साथी हमारे इस ट्रस्ट में नहीं है वो भी इसमें शामिल हों और लोगों की खिदमत के लिए जितना हो सके काम करें। सब दुनिया से सब लोगों ने चले जाना है, काम वही है जो काम आने वाला है, जो लोगों की खिदमत करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू करनी, बदतमीज़ी ना करनी, इस तरह के ये सब अच्छे काम हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अपने बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए अच्छा खाना और दूसरे घर वाले को जो साथी हैं वो उसी तरह ही भूखे प्यासे हों, उनको ज़रूरत उसी हो, उसी तरह की पड़ी हो। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ जितने लोग परेशान आसपास के जिधर रहते हैं लोग, हम रहते हैं अपने घर ऐसे करीब या जितने भी रहते हैं, ये सब लोगों को के लिए मेरा पैगाम है। आप लोगों को देखें ये मुस्तहिक है, ये गरीब है, तो उन सारे की खिदमत करना ये हमारे पे फ़र्ज़ है, हमें करना चाहिए। तो मैं इसी वाले से जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ सेठ मुज़म्मिल साहब तशरीफ़ रखते हैं और ये बड़ा तैयार शर हो के आज 14 अगस्त को मना रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आज सुबह से लेकर ये टाइम आ गया तो इन्होंने 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त को हमने बड़े जज्बात से और बड़े बलबले से सेलिब्रेट किया। इस सिलसिले में हमने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट जगना के ज़रिए एहतमाम एक केक भी काटा, साथियों को रिफ्रेशमेंट भी दी और लोगों को पैगाम दिया कि ये दिन हमें अपने बड़ों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, ताकि इस कुर्बानियों को याद करके हम इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम अपने बड़ों की कुर्बानियों से सीख के अच्छे से अच्छा काम कर सकें, ताकि ये मुल्क अपनी असल मंजिल मकसूद जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह थी वहाँ तक पहुँच सके।
بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین, میرے ساتھ سیٹھ سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ ایجڈ ہیں. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ ملک جس قربانی سے اور جن قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے, اور جب وہ قربانیاں دے دی گئی ہیں, تو کیا آج ہماری آنے والی نسل یا جو یہ نیو جنریشن ہے یہ ان قربانیوں کا حق ادا کر رہی ہے؟ السلام علیکم جی. پاکستان جدو بنیا سی جی لا الہ الا اللہ دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جی. میں پیغام دینا ساڈے وڈیاں نے قربانیاں بڑیاں دتیاں تے سانوں بھی انہاں دے پیچھے پیچھے اس چیز دا غور کرنا چاہیے. تے دوجا پیغام جی یہ ہے میرا کہ لا الہ الا اللہ دا مطلب کیا یہ تے نماز اور یا اپنا نماز درستی نال اپنا ادا کرو تے نماز دا خیال رکھو جی. بہت شکریہ. اسپائر کالج. السلام علیکم ناظرین, اسپائر کالج کے پروفیسر خبیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج انہوں نے 14 اگست کو کیسے سیلیبریٹ کیا, اور یہ آج اس عوام کو کیا پیغام دیں گے اس 14 اگست کے موقع پر. السلام علیکم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تھے یہاں پہ اپنے ویلفیئر کے اکارڈنگلی تو ہم نے یہ کیک کاٹا, اس کے بعد ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, اور ہم نے بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ یہ سارے دوستوں کو بتایا کہ یہ ہمارا بیسیکلی ملک کا یہ مقصد تھا. تو اس کے بعد یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم 75 سال پیچھے جائیں نا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہمارے جو بڑوں نے اپنی قربانیاں دیں. سب سے پہلے جانوں کی قربانیاں دیں, مال کی قربانیاں دیں, پھر اس کے بعد عزتوں کی قربانیاں دیں. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان ایک جن کے لیے ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے. اصل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان جب بنا تھا 75 سال پہلے, ہم لوگ اس جنریشن سے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی کو نہیں ہے کتنی قربانی دی گئی تھی. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے پاکستان بنایا تھا انہوں نے سب سے پہلے جانوں کی قربانیاں دیں, پھر عزتوں کی قربانیاں دی, پھر مال کی قربانیاں دیں. اور ہمیں صرف ایک پلیٹ کے اندر رکھ کے دیا گیا پاکستان کہ یہ بھائی یہ لو پاکستان, یہ پاکستان آپ کے سامنے ہے, لیکن ہمیں اس طرح قدر نہیں ہے اس کی جس طرح کرنی چاہیے ہمیں. باقی آپ کو یاد ہے کہ ایک عالم تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے نا ہمیں جس طرح ملا ہے نا, جس طرح قربانی سے ملا ہے, ہم اس جنریشن میں کم لوگ ہیں جن کو اس کی قدر کا پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے اپنے جو ماضی ہمارا, اور باقی اسی طرح ہم جس طرح یہ ہماری ویلفیئر کام کرتے ہیں, جو غریب لوگ ہیں ان کو وہ راشن دیتی ہے, باقی جو بندہ جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا اس کو وہ پیسے وغیرہ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا بچہ تعلیم حاصل کرے. تو یہی ہمارا مقصد ہے. اسی طرح پاکستان آگے بڑھے گا. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. السلام علیکم ناظرین, میرے ساتھ آصف اکبر صاحب موجود ہیں. میرے ساتھ آصف اکبر صاحب موجود ہیں جو کہ بہت السلام علیکم ناظرین, میرے ساتھ آصف اکبر صاحب موجود ہیں جو کہ آج 14 اگست کو منا رہے ہیں, اور ان کی تیاری سے بھی لگ رہا ہے کہ بڑے جوش و خروش سے وہ 14 اگست کو منا رہے ہیں. لیکن میں ان سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے آج ہم لوگ 14 اگست کا کیک کاٹنے کے لیے جب یہاں پر آئے تو راستے میں بہت سارے لوگ باجے بجا رہے تھے, ون ویلنگ کر رہے تھے. کیا پاکستان اس منشور پر بنا تھا کہ اس طریقے سے ہماری نئی جنریشن ون ویلنگ کرے, باجے بجائے, ہلڑ بازی کرے, لوگوں کو تنگ کرے, یہاں تک کہ عورت کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے؟ اس پہ یہ روشنی ڈالیں گے. السلام علیکم جی. ہم نے بڑی قربانیوں اور بڑی کاوشوں سے یہ ملک حاصل کیا. نہ اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم باجے بجائیں یا ون ویلنگ کریں, بجائے اس کے یہ تو ایک امن پسند اور سکون کے لیے جو یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. اس کے جو مین کام ہے کہ ہم آپس میں باہمی رواداری, اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں, نہ کہ یہ جو ون ویلنگ یا باجا. اس کی بجائے باجے بجانے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم پودے لگائیں, زیادہ سے زیادہ جو ہے گرین پاکستان بنائیں, تاکہ جو ادھر کی ہوا یا فضا گرد آلود ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے, اور ہمیں آکسیجن میسر ہو, اور ہمارا جو یہ ینگ جنریشن ہے یہ جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں یہ جو ہے تندرست اور ایک صاف ستھرے ماحول میں پروان چڑھ سکیں. اس کے علاوہ ون ویلنگ تو ایک جان لیوا کھیل ہے. اس کے لیے مختلف جو ہے
मुख्तलिफ स्टेशंस पे बार बार कहा जा रहा है कि ये वन व्हीलिंग जो है एक मौत का खेल है, तो लिहाजा इससे दरगुजर करना चाहिए, बजाय इसके कि ये हमारे जो वालिदैन अपने बच्चों को मोटरसाइकिलें दे रहे हैं। इस मौके पे उनको चाहिए कि सख्ती के साथ उनको बात किया जाए और ताकि वो अपने घरों में महफूज रहें और इस तरह के खूनी खेल से महफूज रहें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ तहसीन असगर मौजूद हैं जो कि ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम इनके भी कमेंट्स लें कि इन्होंने 14 अगस्त को किस तरह से मनाया। खुद की बताएं तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है, परचम उठाए हुए हम खड़े हैं, ये प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है, सदा हो मुक़द्दर बहारे वतन को, लहू दे के अपना संवारे वतन को, लहू दे के अपना संवारे वतन को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ पीर हाफिज़ इलियास साहब मौजूद हैं और वो भी आज जश्न आज़ादी को बड़े अच्छे तरीके से मना रहे हैं। कोई भी पाकिस्तानी हो, चाहे वो हमारे मसलक का हो या ना हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि वो पाकिस्तान में रहने वाला हो, तो मेरे ख़्याल में वो 14 अगस्त मनाने से दरेग नहीं करता। लेकिन मैं बार बार हर इंटरव्यू में ये बात कहना चाहूँगी कि वालिदैन थोड़ा सा गुरेज करें, अपने बच्चों को मना करके रखें, वन व्हीलिंग ना करवाएं, कोशिश करें, क्योंकि ये आज़ादी का दिन है, ये खुशी का दिन है, इसे सोग में तब्दील ना कर दें। इसके बारे में मज़ीद रोशनी डालेंगे हमारे साथ हाफिज़ साहब बैठे हुए हैं। जी, आप क्या कहेंगे? गुजारिश है कि मैं या ना कि जश्न आज़ादी मुबारक 14 अगस्त जी है वो अच्छे तरीके नाल मनानी चाहिए है कि जिस तरह के रोड दे उत्ते लोग मोटरसाइकिलों के सलेंसर जिहड़े ने उन्हां नूं कढ के ते लोकां दे कोलों लंघदे ने ते लड़कियां जांदियां ने, उस तो बाद दीगर जिहड़े ने बजुर्ग ने, कोई मरीज़ है किसी किस्म का भी, वो जो कोलों रेस देंदे ने ते वो डिस्टर्ब होंदे ने। ये आज़ादी नहीं, ये बर्बादी है। लेकिन ये वालिदैन का जिहड़ा है ਉਹਦਾ एक बड़ा असर हुंदा है कि वालिदैन अपनी औलाद नूं समझाण कि बेटा कोई वड्डा है ते ਉਹਦਾ एहतराम करो, छोटा है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार नाल पेश आओ। ते अगर कोई माँ भैन जा रही है वो अपनी माँ भैन समझ के ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छे तरीके दे नाल ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ करो ताकि वो तुहाडी तारीफ करन। असल जिहड़ी है ना आज़ादी वो ये वे, ते जे किसी नूं तंग ही करना है वो फिर आज़ादी नहीं रह जाती, वो फिर गुलामी नालों भी जिहड़ा ना बदतर काम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैंने हर उम्र के शख्स से आज इंटरव्यू लिया, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक छोटा बच्चा भी मौजूद है। शायद ये इसने आम बच्चों से हट कर ये 14 अगस्त मनाई है, तो इससे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अवैस अजमल है। मैं 4th क्लास में फ़िज़ान इल्मी इस्लामिक स्कूल सिस्टम में पढ़ता हूँ। आपने 14 अगस्त कैसे मनाई? मैंने बाजा नहीं लिया, तो मैं बिल्कुल सादगी से 14 अगस्त मनाई। आपके ख़्याल में ये बाजा बजाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये बुरी बात है। उन्होंने हमारे मुल्क जो बना था, जब इतनी कुर्बानियाँ दी, तो हम इधर से बाजे बजाते हैं, ये बुरी बात। वेरी गुड। देखें नाज़रीन, छोटे से बच्चे ने अपना इजहार किया है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बहुत कुर्बानियों से जो है ये पाकिस्तान दिया है। इसका ये मकसद नहीं कि हम बाजे बजाकर इसको सेलिब्रेट करें। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।